सर्वे पर भी स्पीक एशिया बेनकाब हो गई है। स्पीक एशिया के मुताबिक इन कंपनियों ने उसे सर्वे के लिए कहा ही नहीं था। मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार न्यूज के सवालों का जवाब नहीं दे सकी स्पीक एशिया। 5 बड़ी कंपनियों के लिए सर्वे नहीं किया स्पीक एशिया का पहला झूठ, जबकि पहले स्पीक एशिया ने इसके उलट बात कही थी। पैसे लौटाने का वादा भी नहीं किया। स्पीक एशिया ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। इसके अलावा स्पीक एशिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 11,000 रुपए मैगजीन के लिए लेते हैं। झूठ नंबर 3 और चौथा झूठ, सिंगापुर का मसला मामूली, यानी सिंगापुर में जो इनका ऑफिस बताया जाता है उस मसले को ज्यादा महत्वपूर्ण ही नहीं मान रही स्पीक एशिया। इसके साथ कंपनी पर सर्वे खुद से किया, यानी कि जिन कंपनियों को अपनी क्लाइंट्स बता रही थी स्पीक एशिया, अब कह रही है कि खुद ही उन कंपनियों पर सर्वे करवाया गया था। तो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह झूठ बोले हैं स्पीक एशिया ने, पहले क्या कहा था और आज क्या कहा, सुनिए। पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जाम्पल है, एयरटेल है, नेस्ले कंपनी है, जिन्होंने हमारे साथ पास में। तो ये तो बात हुई 11 मई की, लेकिन आज क्या कहा वो सुनिए। Now there was a factual error because the brands that he spoke about were the brands we had worked on, but what construed as, because of lack of communication, as these are brands who commissioned us. Now, for example, Bata, that was one name that came up. Own of the responsibility. I apologize to those brands whose names were taken in the context which was out of context by my management team or my sales team, and I'm sure it would have caused them anguish. We owe them an unconditional apology. तो सुना आपने 11 मई को क्या कहा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पलटी स्पीक एशिया। इसके साथ ही 11,000 रुपए को लेकर क्या कहा स्पीक एशिया ने, क्यों स्पीक एशिया लोगों से 11,000 रुपए लेती है, वो सुनिए। Okay, that doesn't happen in any other business. So they have 30-day time to think and decide after they participate with the site, after they participate in the activity, whether they can enjoy working with the company or not. So that's again an exit route they have for 30 days, and that's how they work. Now coming back to what your 11,000 rupees. So 11,000 rupees is not an investment, so it's a wrong term. So what term do you use for this? It's something which a person uses for his own training and subscription to a magazine for full 1 year. So it's a subscription you are saying? Absolutely right, to a magazine. Okay. And that's chargeable. Okay. You have subscribed channels. We have a subscribed magazine. But it's every subscribed thing has a cost, because it's not only that the subscription is by magazine only. This also gives them a chance to participate in the training programs on which the company collectively has spent very, very large amounts now. So since you're saying that this subscription that is collected from the investors, then... Investors is not a word. From customers, can I use that word? No, consumers. Panelists, okay, that's the word. From panelists. No, they also, I must share one more thing with you. Okay, so what word should I use? Please tell me. My vocab is slightly not that good. You're using the right word. They are subscribers. Okay. This magazine also has subscribers who are not Speak Asians, by the way. Okay. So, for example, 2 lakh number of copies of this publication are sold to people who are not subscribers also globally. Okay. Now, this means it's a magazine which is providing you information on marketing, on product awareness, and many other areas. So you can be a subscriber and not a Speak Asian. Okay, so let's talk about the ones who are subscribers and who have paid 11,000 rupees. Okay, so when you pay them, what is that money called? When तो स्पीक एशिया तो अपनी पुरानी कही बातों से पलट गई। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इनकम टैक्स के पोस्ट कमिश्नर विष्णुबंधु गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, लगातार पोल खुलती जा रही है स्पीक एशिया की। क्या एक बार फिर बोलिए, जरा रेजोनेंस आ रहा है जी। जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार जो बातें स्पीक एशिया कह रहा है वो झूठ पे झूठ का पहाड़ खड़ा करता जा रहा है। देखिए मैडम, इन सब लोगों को कम से कम 10 से लेकर 12 साल की सजा होगी। और जिन लोगों को पैनलिस्ट जो बने हैं उनको कृपया करके बॉम्बे की या दिल्ली की पुलिस वालों को एक टेलीफोन कर दें, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई कंप्लेंट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ ऐसे बोलना है कि इस तरह से मैंने ये इंटरनेट के ऊपर ये वेबसाइट देखी थी और इतना पैसा दिया था,
कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है स्टेट के खिलाफ होता है, किसी आदमी के खिलाफ नहीं होता है। तो जितने भी ये लाखों लोगों को जो भी लोगों को जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं, वो कृपया करके कंट्रोल रूम में अपने सिटी की जाके उनका नाम रजिस्टर कराएं, उसके ऊपर ही एक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये जो स्पीक एशिया लाइन है, ये ना प्रोप्राइटरशिप है ना कुछ है, ये बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये एक वेबसाइट है। और जिस वेबसाइट का नाम ही नहीं पता ये वेबसाइट किसने खोली है, ये वेबसाइट मैं दावा करता हूं अगले 7-8 दिन में या फिर शायद 48 घंटे के अंदर ये गायब होगी इंटरनेट की वेबसाइट से। दूसरा, इनका जो आप देखिए, ये 3 कहते हैं, ये हमारे ऑफिस है, जरा इस पे जरा आप फोकस करिए प्लीज। ये नीचे देखिए आप जरा प्लीज, इसको फोकस करिए, कैमरामैन प्लीज फोकस ऑन इट। ये इस पे आप जरा फोकस करिए, जो 3 इन्होंने ऑफिस दिखाए हैं नीचे, ये जरा ये देखिए जो 3 आ रहे हैं, इस पे जरा आप फोकस करिए। ये शिवम एंटरप्राइज, श्रीलंक एंटरप्राइज, ये तीनों पते बोगस हैं। यहां पे इनका कोई ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता है। इनके जो 3 फोन नंबर हैं वो हमने चेक किए हैं, वो तीनों फोन नंबर स्पीक एशिया ऑनलाइन के नाम से नहीं है, वो किसी बोगस इंडिविजुअल्स के नाम से लिए हुए हैं इन्होंने। ये जो पूरा धोखाधड़ी जो हुई है लोगों के साथ, ये वेबसाइट गायब हो जाएगी 48 घंटे के अंदर। ये लोगों का मुझे ये भी नहीं पता है इनका नाम, ये जो है ये सच्ची बोल रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इनके पास किस कंट्री के पासपोर्ट्स हैं। और बॉम्बे पुलिस को या दिल्ली पुलिस को इन लोगों के पासपोर्ट फौरन कॉन्फिस्केट कर लिए जाए ताकि ये लोग भाग ना पाए। और अगर ये भाग गए तो इनकी गिरफ्तारी इंटरपोल को करनी पड़ेगी फॉरेन कंट्रीज में जाकर। और जो सबसे बड़ा मुझे इसमें डर लग रहा है, मेरा ये अनुमान है कि करीब 300 से लेकर 400 करोड़ तक का इन्होंने पैसा पब्लिक से लूटा है, और उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जितना पैसा लोग इनके पास आ रहा है, ये हिंदुस्तान से उसको बाहर भेजते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पुलिस और सीबीआई के आगे खड़ी होने वाली है। मैं कमिश्नर के होने के नाते इनसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों को फौरन डिटेन कर लिया जाए इंटेरोगेशन के लिए, इनका पता लिया जाए, और जब साक्ष्य हो जाए तो इनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल, और ये अपील आपके दर्शकों तक जा रही है। स्टार न्यूज पहले से ही जांच पड़ताल कर चुका था स्पीक एशिया की, लोगों के सामने सच ला चुका था स्पीक एशिया का। आज जब स्पीक एशिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद स्टार न्यूज के सवालों का जवाब देते नहीं बना स्पीक एशिया से। पूरे जितने भी बयान स्पीक एशिया ने पहले दिए थे, अपने एक एक बयान से स्पीक एशिया पलट गया।